8th class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done your previous work. Now student, today we start exercise 6.6. So, in the exercise 6.6, we study about the construct about a square, rhombus, parallelogram, rectangle, like that. So student, let we start exercise 6.6. Here they give you in the first sum, construct a square of side 5.5 सेंटीमीटर. हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक स्क्वायर को whose side is 5.5 सेंटीमीटर. So student, we take a scale and draw a line 5.5. So this is 0 point and this is 5 and 5 more step. This is 5.5. We draw a line. We know that in the square there will be 90-degree angle at the corner. So here we put the D like that and we mark as 90-degree and draw a line. Now student, open the compass 5.5 centimeter like that. This is complete 5.5. We put the compass here and then then take a arc like that. We draw a arc. After that here put also and we put an arc. So student, now this is our center point here. Now put the compass there at that point and take another arc here. Now student, what we do, here this point to this we make and this to this, and here we write 90-degree and here 5.5 centimeter, 5.5 centimeter, 5.5 centimeter and 5.5 centimeter, and this is a square. I hope student you all understand this sum. In the next sum, construct a square whose diagonal length is 5 centimeter. Here इन्होंने क्या दिया है, डायगनल लेंथ दी है. डायगनल लेंथ कितनी दी है हमें, 5 सेंटीमीटर. सो हमने यहाँ पहले एक डायगनल ले लिया, डायगनल 5 सेंटीमीटर. डायगनल 5 सेंटीमीटर लिया है तो स्क्वायर है, स्क्वायर के तो डायगनल हमारे सेम होंगे. अब हम क्या करेंगे, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करेंगे, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, और हम यहाँ एक आर्क लगा देंगे, वन अपर एंड वन लोअर. Here also this and this. And now student, we make this point to this point to this point to the center point, and this point to this center point. Now student, we measure, this is complete half of this 2.5. So like that, a little bit, 2.7 like that. Student, you can do this. This is our A, B, and this is C and D. This is a square, all sides are same here. Now student, in the third sum, what they give you in the third sum, they give you
कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस, रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना है। ए बी 5 सेंटीमीटर दे रखा है और जो डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। सो स्टूडेंट हम पहले क्या करेंगे, हम ले लेते हैं डायगोनल 8 सेंटीमीटर लाइक दैट। स्टूडेंट हमने यहाँ डायगोनल ले लिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या कहा है, रोम्बस की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया और हमने एक आर्क लगा दिया। नाउ अगेन बाइसेक्ट कर दिया है इनको और अब हम क्या करेंगे, इनको मैच कर लेंगे। ये हमें एग्जैक्ट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे मिलेगा, 5 सेंटीमीटर, ये था 8 सेंटीमीटर। और ये आपका, जब आप इनको मेज़र करके देखोगे स्टूडेंट, तो ये आपका क्या होगा, सभी की सभी साइड्स 5 सेंटीमीटर की होंगी और सभी साइड्स सेम होंगी। ए सी, वी नेम बी and this is D. Here we write 5 centimeter, 5 centimeter and 5 centimeter. This is your third question, student. Now in the question number 4, what they give you? Construct a rhombus whose side is 7 centimeter. Sorry, fourth question this, whose diagonal length are 7 centimeter and 6 centimeter. दोनों के दोनों आपको यहाँ पे क्या दे दिए हैं, हमें डायगोनल दे दिए हैं स्टूडेंट। तो देखो अब हम इसको कैसे करेंगे, जब हमारे पास दो डायगोनल होंगे, इन दैट कंडीशन we take 7 centimeter of length of first diagonal. So here as you can see 7 centimeter we take like that. After that first diagonal length is 7 centimeter. So half of this हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा कंपास ओपन करके एक आर्क ऊपर लगा देंगे, एक नीचे लगा देंगे। इसी तरह से हम इसको इधर बाइसेक्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट अब देखो हमें क्या करना है, हम इस लाइन से इस लाइन को हम डॉटेड में ड्रॉ कर लेते हैं। आफ्टर दैट जो सेकंड डायगोनल है वो 6 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है 3। तो हम अपने कंपास से पेंसिल को 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और यहाँ जो हमारा सेंटर पॉइंट है उस पर रख के एक आर्क लगा देंगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क इस तरह से नीचे। और जो अब ये पॉइंट होगा ये होगा हमारा सेंटर पॉइंट। अब हम इस पॉइंट से यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर हो गई है, ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट 7 थी तो 3.5 ये है और 3.5 ये है। अब हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे इस तरह से। ये क्या हो गया, हमारा एक रोम्बस तैयार हो गया है। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस सम। इन द नेक्स्ट सम here they give you rhombus side is 7 centimeter and one of the angle is 120 degree। एक एंगल जो है वो 120 डिग्री दे रखा है और इस तरह से हमें एक रोम्बस ड्रॉ करना है। In the fifth question they give you the length of the side is 7 centimeter. So here we draw 7 centimeter a line. After that they say रोम्बस है तो ऑल साइड्स आर सेम। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो एक एंगल है वो 120 डिग्री का है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना डी रख के 120 डिग्री यहाँ तक होता है तो हम 120 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक एंगल ड्रॉ कर देंगे लाइक दैट। आफ्टर दैट ओपन द कंपास 0 to 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अपने कंपास को 0 से 7 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। आफ्टर दैट हमें इस पॉइंट पे रख के और यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर देना है। अब इस एंगल पे जब हम एंगल बनाएंगे तो हमारा एक एंगल 120 डिग्री का हो गया है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ बाइसेक्ट करेंगे। सो स्टूडेंट देखो यहाँ पे कंपास रख के हम यहाँ पे एक आर्क लगा देते हैं। आफ्टर दैट अब हमारे पास ये पॉइंट है, यस, इस पॉइंट पे हमने कंपास रख के इसको बाइसेक्ट कर दिया तो हमारे पास रोम्बस के जो कंप्लीट पॉइंट है वो आ चुके हैं। हम इस सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट को मीट कर देंगे एंड इस पॉइंट से हम इसको मीट कर देंगे। दैट्स लाइक
This is a rhombus. 7 centimeter, 7 centimeter and 7 centimeter. This is your fifth question. I hope you all understand. And here we write the angle 120 degree. Now student, question number 1 to 5, I hope all of you understand. So you can do this complete in your fair notebook of maths. Thank you student. Have a nice day.